Yes, beta. I hope you all are good at home, right? Today we are going to continue with our chapter number 5, lines and angles, which we were doing before our vacations, right? We did exercise 5.1. Now we'll continue after that. So everyone open that chapter. Chapter number 5, page number 103. So after the topic which we have discussed before vacations, now we have intersecting lines. You might have heard the word earlier, intersecting lines. Look here on the board. Intersecting lines. Two lines, if they meet at a common point, they are known as intersecting lines. Right? So we are not supposed to write the definition of this in our notebook. ठीक है, क्योंकि it is very simple. Intersecting lines कैसे होती हैं? जो दो lines किसी एक single point पे meet करती हैं, that are intersecting lines. Okay. And like this is L and this is M. Line L and M are intersecting lines. And what is this? This is point of intersection. This is point of intersection. Further, बच्चे, page number 104. See the try these. Find examples from your surroundings where lines intersect at right angles. So you can give the example, the side of the blackboard. Blackboard की जो side होती है ऐसे फिर ऐसे, right? This is the board. These are the lines which intersect at right angles. So you can give the example, side of right angles, or you can write side of the window panes. Window panes नीचे और नीचे वाली side जो होती है, that also intersect at right angle. So these example you can give. Any other example also you can give. Then second question, look in the book everyone please. Find the measure of the angles made by the intersecting lines at the vertices of an equilateral triangle. So you know, in an equilateral triangle, all the three sides are equal and all the three angles are also equal. And what is the measure of each angle in an equilateral triangle? 60 degrees. So the question is that if there is an equilateral triangle, then the lines, intersecting lines, are making what angle? 60 degree. So you write down in the book only 60 degree. Fine. Yes, Satvik. मैम ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा मैम, Be louder. ब्लर आ रही है। Yes, Satvik बोलो। मैम ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, स्क्रीन ना ब्लर आ रही है। हो जाएगा बेटा ठीक, 2 मिनट वेट करो, मे बी द इंटरनेट प्रॉब्लम इज देयर। यस हर्षिया। मैम यस मैम, आपकी आवाज भी कम आ रही थी, तो मैम अभी आपने सेकंड में मैम कैसे करवाया, ये जो अभी करवाया? माइक लगा रखो। यस नित्या आप बोलो। वो कट रही थी थोड़ी सी आवाज। यस नित्या प्लीज बी लाउड। सेकंड वाला समझा दो। Which chapter is going on? बेटा चैप्टर नंबर 5, chapter number 5, lines and angles. We have done exercise 5.1 before vacations. ठीक है, अब हमने 5.2 स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले जो सारी इंट्रोडक्शन है हम वो कर रहे हैं।
अभी तक Okay, हमने ma'am. किया इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे, दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड द पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन किए ट्राई दीज के, जिसमें था कि एग्जांपल दो ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे। तो हमने एग्जांपल दिया साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड, साइड ऑफ द विंडो पेन। ठीक है, देन आवर क्वेश्चन वाज दैट इफ देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की लाइंस हैं वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो किस पे इंटरसेक्ट करती हैं? वी नो each angle of an equilateral triangle is 60 degree, so the lines intersect at 60 degree. Okay, ma'am. Fine. Nitya, mute yourself. Yes, Bhavya. मैम मैंने बस यही पूछना था, जैसे आपकी आवाज में पहले कट रही थी, तो मैम ये जो इसकी इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है, और मैम इसकी एग्जांपल्स ये भी फेयर में लिखनी है? कुछ नहीं लिखना अभी तक फेयर में। ठीक ओके है, अभी समझो सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, जो लिखना होगा फेयर में दैट आई विल टेल यू। We are not here to just waste our time. Intersecting lines are very easy. Try to write in fair, it's okay. आगे लिखेंगे, बहुत है काम फेयर में लिखने वाला। थर्ड क्वेश्चन इज पेज नंबर 104 का ट्राई दिस कर रहे हैं हम। ड्रॉ एनी रेक्टेंगल and find the measure of angles at the four vertices made by the intersecting lines. Very easy. Rectangle जो होता है, you all know, it makes what angle? 90 degree. तो कहते हैं रेक्टेंगल बनाओ और बताओ कि जो उसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो कौन सा एंगल बनाती है, कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री। ठीक है, ये बुक में लिख लो बच्चे। Next question. If two lines intersect, do they always intersect at right angles? Now, what is the answer? The answer is no. Look here. अगर हम दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे फिर तो राइट एंगल बन रहा है, बट इफ अ लाइन इज लाइक दिस एंड द सेकंड लाइन इज लाइक दिस or like this, it does not make an angle of 90 degree. So it is not always that the intersecting lines make an angle of 90 degree. It depends upon the lines how they are intersecting. So the answer to this question is no. Nitya, if there is no doubt beta, then please lower your hand. Okay बच्चे, next here comes transversal. Transversal की definition, it is written on page number 104 last में, underline कीजिए। A line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. This you will write in your fair. Transversal. ठीक है, जैसे अगर दो लाइंस हैं, जरूरी नहीं है लाइंस पैरेलल हो। These are two lines general. If there is a line which is intersecting these two lines, एक सिंगल लाइन है जो इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है? कट कर रही है। इस लाइन को इस पॉइंट पे, इस लाइन को इस पॉइंट पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। सो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, अगर एक लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसमें से हम ये नहीं कहते कि ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल कम से कम दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। जैसे मान लो हमारे पास चार लाइंस हैं, इन चारों लाइंस को कट करती हुई एक सिंगल लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। सो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट two or more lines at distinct point. Distinct point means at different points.
मतलब ये पॉइंट ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, अलग अलग पॉइंट्स हैं. सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल. ओके. यस नैतिक. मैम आप चैप्टर कौन सा करा रहे हो मैम? मेरी अभी क्लास ज्वाइन हुई है. बेटा चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स 5.1 हमने खत्म की थी वेकेशन से पहले. अब हमने 5.2 शुरू करनी है, तो उसके पहले में जो भी टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं. ओके मैम. पेज नंबर कितना? That's why I always say be in time in the class. Okay, okay beta, okay. Fine. Yes Krishna. एक्सक्यूज मी मैम. मैम ट्रांसवर्सल मैम करना है फिर कॉपी में? हाँ जी करना है. ओके मैम. Yes आकृति. Excuse me, ma'am. बोलो बोलो. Ma'am, please tell me again what is transversal. Okay, transversal I will tell again. Lower your hand. मैम. हाँ जी कनक बोलो. मैम आपका ना बोर्ड नीचे दिख रहा है मैम, कुछ ऊपर वाला दिख नहीं रहा मैम. बेटा ऊपर कुछ नहीं लिखा मैंने, चैप्टर का नाम लिखा है ये देखो. तो अगर मैं ऐसे करती हूँ तो नीचे Okay, वाला ma'am. नहीं दिखेगा, और अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ऊपर वाला नहीं दिखेगा. ठीक है. तो जो आपने जो मैं लिख रही हूँ वो आपको दिखे, ये मैं आई एम मेकिंग श्योर ऑफ दैट. ऊपर हेडिंग ही लिखी है उसका, Okay, ma'am. वो तो बता दिया हुआ है पहले. ठीक है. ये देखो पीछे बहुत पीछे किया हुआ है, इससे पीछे करूंगी तो फिर और पीछे पीछे हो जाता है, फिर नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा. ठीक है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है. कितनी सारी लाइंस है, एक सिंगल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. ओके. सो यू विल राइट दिस डेफिनेशन. Now come to page number 105. Try these. 105 राइट हैंड साइड पे ये जो try these दिए हुए हैं ये निकालो. Yes पवन. एक्सक्यूज मी मैम. मैम मेरा मैम हैंड पहले से ही रेस था. फिर लोअर करना सीख, याद रखा करो बच्चे, ऐसे क्लास में फिर इंटरप्शन होती है. मैम बोलो. मैम जी आप ना बोर्ड में ना लाइट आ रही है मैम, लाइट के लिए ना ब्रश दिख क्या रहा है करूं मुझे. बेटा, क्या अभी अभी कुछ अभी किस किस को बोर्ड नहीं दिख रहा? बोर्ड के ऊपर हमारे यहाँ कोई लाइट नहीं है बच्चे. बिल्कुल लाइट ऑफ कर दूंगी, कुछ नहीं दिखेगा फिर आपको. कैमरा की अपनी क्लैरिटी अपना ठीक करो थोड़ा सा, अपने जो भी है आपका फोन बोन उसकी ब्राइटनेस बढ़ाओ. अब आ जाओ बेटे, ट्राई दीज. पेज नंबर 105. Suppose two lines are given. How many transversal can you draw for these lines? आपके पास दो लाइंस हैं. ठीक है. दो लाइंस पे कितने ट्रांसवर्सल बना सकते हो? ओनली वन. सॉरी, ये एक ट्रांसवर्सल. ऐसे दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए कितने ट्रांसवर्सल बना सकते हो आप? इनफाइनाइट. सो द आंसर इज इनफाइनाइट. ये दो लाइंस हैं, ये एल एम एन पी क्यू. So L is also a transversal because it is intersecting the two lines at different points. M is also a transversal, N is also a transversal. तो दो लाइंस अगर हैं उसको कट करते हो आप कितने ट्रांसवर्सल बना सकते हो? जितने मर्जी, इनफाइनाइट. बट हमेशा जो ट्रांसवर्सल है वो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा.
I hope it is clear. Yes, Kanish. मैम फिर से समझा दो मैम, मेरा नेट चला गया था। बेटा अगर दो लाइंस हैं तो हम कितने ट्रांसवर्सल बना सकते हैं? जितने मर्जी। ये देखो, ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक लाइन जो दो लाइंस को एक साथ कट कर सकती है ना? तो ये दो लाइंस हैं, इसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस को एक साथ कट करता है। यस, इसको बोल सकते हैं। यस, इसको ऑल आर ट्रांसवर्सल। तो क्वेश्चन है कि अगर दो लाइंस हैं तो उस पे कितने ट्रांसवर्सल हम बना सकते हैं? इनफाइनाइट। फाइन, थैंक यू मैम। Second question, if a line is transversal to three lines, how many point of intersections are there? कहते हैं अगर एक लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल है, कितनी लाइंस का? 3 लाइंस का। एक ट्रांसवर्सल जो है वो कितनी लाइन का ट्रांसवर्सल है? 3 लाइंस का। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? 3 पॉइंट्स, बट ऑल द पॉइंट्स विल बी डिस्टिंक्ट। एक पहली लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, एक दूसरा, एक तीसरा। सो हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी देयर? 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। राइट डाउन 3 डिस्टिंक्ट या 3 डिफरेंट लिख सकते हो। इन द बुक ओनली यू हैव टू राइट डाउन 3 distinct points or 3 different points. ठीक है बच्चे। next try to identify a few transversals in your surroundings. तो सोच लेना, कल बात करेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं। Now beta, next we will study about parallel lines. You all have heard the word parallel lines in your lower classes. Write down the heading parallel lines. The lines, write down definition. The lines which do not intersect at all. The lines which do not intersect at all are called parallel lines. Are called parallel lines. For example, railway tracks, side of the blackboard, side of the window pane. Any example you can write down. The lines which do not intersect at all are called parallel lines. For example, side of the blackboard, side of the window panes, railway track. जो लाइंस कभी नहीं मिलती आपस में वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। इनको आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करो, ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। ठीक है, पैरेलल लाइंस हमने लिख लिया। इसके बाद बेटा हमने क्या करने हैं? वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। Different type of angles. One by one I will explain you. Write down. First one is corresponding angles. What type of angles? Corresponding angles. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? सपोज दो लाइंस हैं, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, पैरेलल नहीं है, और ये एक ट्रांसवर्सल है।
तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये वाले एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक ही साइड पे, अगर इस लाइन के ऊपर ये है तो इस लाइन के भी ऊपर वाला एंगल 1 and 2, एंगल 1, पहले सुनो मेरी बात, लिखना नहीं है अभी। एंगल 1 और एंगल 2 ये कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से ये नीचे वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसी तरह से उधर, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या ये इक्वल है, आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल? सो बेटे corresponding angles are equal only if the lines are parallel. corresponding angles तभी हम एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर तभी लिख सकते हैं अगर ये लाइंस क्या हो, पैरेलल। बट हमने पैरेलल लाइंस नहीं बनाई। सो if the lines are parallel, if I draw two parallel lines and a transversal, now this angle 1 and angle 2 are corresponding angles. Now they are equal. Why? Because the lines are parallel. ठीक है, तो अगर मान लो दो लाइन ऐसे हैं, ये ऐसे और ये ट्रांसवर्सल, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल की एक साइड, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज द लाइंस आर नॉट पैरेलल। सो फर्स्ट ये आप बना लो फिगर, रफ में बनाओ अभी फटाफट से, एंड राइट डाउन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं ये लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, ये बना लो बेटा, 3 नीचे, 4 नीचे वाली साइड का एंगल, तो और इधर नीचे वाली साइड का एंगल, ये भी कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से ये इसके इक्वल और ये कॉरेस्पॉन्डिंग। अब मैं वो मार्क नहीं कर रही, फिर हॉच पॉच हो जाता है। 1 and 2 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 and 4 आर कॉरेस्पॉन्डिंग। Clear? Now also write down corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal only if the lines are parallel. Only if the lines are parallel. Okay. Yes, Kanishk. मैम फिर इनका नंबर नहीं होगा जो कुछ नहीं सुन रहा बेटा, बी लाउडर। कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैम फर्स्ट नंबर के ऑपोजिट साइड का नंबर नहीं देंगे क्या? मैम जो हमने 1, 2, 3, 4 लिखा है, 4 एंगल्स हमने बनाए हैं, उनके ऑपोजिट साइड पे भी हमने 4 एंगल्स, उनको नंबर नहीं देना हमने? दे दो चाहे ना दो बेटा, आपकी मर्जी है। मतलब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझाने से है। अब दे लो, लिख लो 5, 6, 7, 8, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने ज्यादा नंबर नहीं लिखे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट का मीन्स
एक ट्रांसवर्सल के इधर, एक ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ, ऑल्टरनेट, ठीक है। इंटीरियर मतलब अगर दो लाइंस हैं, मैंने पैरेलल लाइन से बनाई है, लेकिन आप जरूरी नहीं पैरेलल लाइंस बनाओ। पैरेलल लाइंस हमें आदत होती है यूजुअली, और फिर हम आगे पढ़ेंगे दैट द एंगल्स आर इक्वल ओनली इफ द लाइंस आर पैरेलल, so that's why I am making the parallel lines and this is the transversal. अब alternate means एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर, दूसरा एंगल इधर। इंटीरियर मीन्स अंदर, पैरेलल लाइंस के अंदर। ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अगर ये वाला एंगल 1 और इधर इस साइड है, और दूसरी साइड अंदर वाला एंगल कौन सा है, ये 1 and 2, they are alternate interior angles and these angles are equal only if the lines are parallel. ये तो हर क्वेश्चन में कंडीशन है ना, corresponding angles, alternate interior, alternate exterior, they are equal only if the lines are parallel. But alternate interior angles होते कौन से हैं, ये बात, एंगल 1 और एंगल 2, इसके लिए अलग फिगर बनेगी। उसी फिगर में भी वो कर सकते थे हम। और दूसरा पेयर कौन सा होगा, एक एंगल इधर और एक एंगल उधर अंदर वाली साइड, 3 and 4, alternate interior angles. These are the pair of alternate interior angles. Note down. Fine. Now we are going to study alternate exterior angles. अब कैसे हैं, ऑल्टरनेट हैं, लेकिन ऑल्टरनेट कैसे हैं, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। जैसे 1 2 3 4 था, इनको ऐसे रहने देते हैं। आप फिगर एक ही फिगर में ये कर सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर वाले ये हो गए। अब एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट मींस एक एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड पे, दूसरा एंगल दूसरी साइड पे, लेकिन बाहर किसके, पैरेलल लाइंस के बाहर, पैरेलल लाइंस के बाहर। तो 5 और ये ट्रांसवर्सल के इधर है, ये ट्रांसवर्सल के इधर बाहर, 6। एंगल 5 and angle 6 are alternate exterior angle. I hope it is clear. Similarly, 7 and 8. 5 and 6 angle are alternate exterior. 7 and 8 are alternate exterior. And they are equal if the lines are parallel. Now I am not going to dictate, ये आप लिख लेना। Alternate interior and alternate exterior angles are equal only if the lines are parallel. Note down please. Next bete, we are going to discuss the co-interior angles. Co-interior angles. Or what is the other name for this? It is written in your book. पेज नंबर 105 निकालो। क्या आकृति,
Ma'am, there is my network problem. What दोबारा is बोलो. alternative interior? What? Please, sorry again. Ma'am, what's the alternative interior? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर बेटा जो अंदर की तरफ होते हैं और ट्रांसवर्सल की अलग अलग साइड पे होते हैं, जैसे 3 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर है, 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर है. एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड और दोनों अंदर है, तो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर. ओके आकृति? Okay, ma'am. Thank you. को इंटीरियर एंगल का को हम क्या होते हैं, पेज नंबर 105 पे देखिए बेटा, जो टेबल बना हुआ है उसके लास्ट में लिखा हुआ है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. व्हाट आर को इंटीरियर एंगल? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal. अंदर वाले एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे कौन से हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर? अंदर वाले एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे 1 and 4 interior angles on the same side of transversal. So what are co-interior angles? Angle 1 and angle 4 and also 2 and 3. 2 and 3. ये कैसे एंगल्स है? को-इंटीरियर एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं एक ही साइड. ठीक है? And there is one very important property, that is sum of co-interior angles is 180 degree अगर if the lines are parallel. मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं और को इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमेशा उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. ओके, सो ऑल द टाइप ऑफ एंगल्स यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक. टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज एंगल्स, देन इट विल गेट मोर क्लियर टू यू. ओके बेटा? And the student those who have not sent holidays homework, beta, please send it today. Yes, Harshita. मैम लास्ट वाली लाइन लिखी है ना मैम, ये थोड़ी दिख रही है, रिपीट कर दो. कनव आप बोलो. मैम मैंने पूछना था कि टाइम टेबल में मैम आपका पीरियड कहीं और लिखो तो मैम थर्ड हुआ है तो फोर्थ पीरियड इसका लगेगा. फोर्थ पीरियड टाइम टेबल में देखो. ठीक है, टाइम टेबल देखो. यस प्रेरणा. So no hand is raised. I hope everything is clear to you. Fine beta. Just revise